Hi guys, what's up? Welcome back. Welcome to the new session. Mm, if you can see me or hear me, please give a thumbs up, and then we will be just starting right off with antibiotics. Yeah. Yeah, we are live, guys. We are live again, and in this session, we will be completing. Uh, so this is the antibiotics marathon session. So we'll be revising whole antibiotics in this session only, and we'll be completing this session within 3 hours, and our target is to complete the antibiotics within the 3 hours. So guys, welcome to the Unacademy, the largest online learning platform, and I am Shiv Virmani, Indian medical student and author of the book Pharmacology. And here in this session we will be discussing the whole antibiotics. We'll be discussing about the various classifications. We'll be discussing the mechanism of action, then their resistance and their indications, and the drug of choice for various new strains, and the superbugs, and the new Delhi metallo bacilla and all. Right, so we'll be discussing many things in this session, and this is the most important session if you want to complete the antibiotics. So we'll be not just talking about the higher things. We'll be starting right from the base. So that's why I think that this is a beneficial session for you guys. And yeah, so here in this slide you can see that we can install the Unacademy app for free from Play Store or App Store, and you don't have to pay a single penny here. It's a free app, and even you can take benefit of Unacademy for free, because there are very much um, beneficial live special classes that are ongoing, and you can chat with your educator. You can make your concepts clear and all, and that's the main benefit of the Unacademy. And here you can chat with your favorite educator, the top educator. um, so here on Unacademy we are having the educators from the top institutes of India, AIMS, Safdarjung, and all the esteemed universities, and these are the educators that are having many years of the teaching experience, and with their strategy you can learn easily, and you can learn the things easily, right? And yeah, so now we are having two choices, plus course and the iconic. So plus में आपको क्या क्या benefit होता है? So plus में you get access to the live classes. You can take up the test, you can take the quizzes, you can attend or you can enroll yourself into the various batch courses. Then you get the structured schedule, and basically you get the strategy of how you have to complete the topics, and you get the deadline here, and that's what is important. And iconic course. So iconic may you basically iconic is the collaboration of Unacademy and Prep Ladder, right? So here all the benefits you get of Unacademy. So in the plus you can access whole Unacademy, and here in iconic also you can access the whole Unacademy, plus you get the Prep Ladder benefits. It means that you get access to the pre-recorded video lectures. You can attend, or you can give the grand test, and you get access to the QBank 2.0. You get the rapid revision course, you get the handwritten notes, and that's why this course is beneficial
for a second or a third year medical student, and even now the first year medical student, because now we are having next, so एक साल हमें कम मिलेगा, तो फर्स्ट ईयर, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर यू शुड बी स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. एंड सबसे पहले आइकॉनिक की बात करते हैं. सो इफ़ यू बाय द आइकॉनिक देन यू हैव ओनली 4 चॉइसेस: 12 month, 18 month, 24 month and 36 month. So here you have only 4 choices. You can buy it for 1 year, 1.5 year, 2 years and 3 years, right? And if you want to buy, then you can use the code Virmani and you will be getting 10% instant discount, right? Then if you choose plus course, then plus K you get many benefits. You can access it for 1 month, you can access it for 3 months, you can buy it for 6 months, 12 months, 18 months, 24 months and 36 months. And that is the most important thing, because you can even buy it for 1 month. And even if you just want to test ki is it necessary or is it beneficial for you or not, so you can just buy it for 1 month and you can test it, and code is same. And here we are not studying pathology, here we are studying pharmacology again, and we are revising the antibiotics, because there were many requests that please revise antibiotics part. And so that's why we are back to our Pharma Easy series. So in this series we studied the medicinal concepts with the physiological base to study the pharmacological concepts and to understand the pharmacology in slightly better way. And that's the main key, that was the main key of our Pharma Easy series. And that's why we that's why हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए थे, right? So oh my god, why are you falling? So antimicrobial agents. So in this session we'll be just revising the things, right? But ऐसा नहीं होगा कि आपके सर के ऊपर से जाएगा, हम अच्छे से उसको बेस से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे और सब टॉपिक्स की फॉर्म में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. देन सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एक्शन. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में it is based upon action, how antimicrobial agent acts. So guys, first sidal drugs and then static drugs. ठीक है, sidal drugs and static drugs. Sidal drugs are those drugs which will kill the bacteria right away, right? Static drugs are the drugs that will stop the growth of the organism or the bacteria. ठीक है. So this is the classification based on the action. So one we are having sidal drugs and another we are having static drugs. So guys, sidal drugs, as we have discussed earlier, we are having Bevafar drugs. So in this sidal drugs we are having Bevafar drugs, right? Bevafar drugs is a mnemonic, and for BE we have beta lactams, VA we have vancomycin, F we have fluoroquinolones, and A we have aminoglycosides. So beta lactams, vancomycin, fluoroquinolones, aminoglycoside. So these are the sidal drugs. And कभी भी आपको sidal drug या static drug आपको लिखना है but और MCQ में आ गया and you don't know, then just remember the Bevafar drugs. These are the sidal drugs, right? Then static drugs में you are having Sectel, और जो भी sidal drug में include नहीं है वो सारी static मान लो. So you are having Sectel mnemonic here: sulfonamides, erythromycin, chloramphenicol, clindamycin, tetracycline, ethambutol and linezolid. So उसके अंदर क्या क्या थी हमारी? बीटा लैक्टेम्स, वैनकोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड एमाइनोग्लाइकोसाइड्स. ठीक है. सेक्टेल के अंदर और स्टैटिक ड्रग्स के अंदर वी आर हैविंग सल्फोनामाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन,
chloramphenicol, clindamycin, tetracycline, ethambutol and linezolid. ठीक है. Then first of all, bactericidal pharmacokinetics. So guys, these three are the important points जो कि काफ़ी सारी बुक्स में नहीं है एंड इवन ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती कॉलेजेस में, बट दीज आर वेरी 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 नेसेसरी 3 टॉपिक्स जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, CDK, TDK एंड AUC. CDK मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग एंड TDK मतलब टाइम डिपेंडेंट किलिंग. AUC मतलब एरिया अंडर द कर्व डिपेंडेंट किलिंग. सो CDK मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, TDK टाइम डिपेंडेंट किलिंग, AUC एरिया अंडर द कर्व डिपेंडेंट किलिंग, और इसको हम AUCDK भी कह सकते हैं. सो गाइस, CDK as the name suggests, concentration dependent killing. Higher the concentration, more will be the killing. ठीक है. TDK टाइम डिपेंडेंट किलिंग. सो जितना ज़्यादा टाइम हम बढ़ाएंगे विद द ड्रग्स तो हमारा बैक्टीरिया ज़्यादा मरेगा. ठीक है. So this is increasing time and this is increasing killing. So this type of graph we will achieve here. Then area under the curve dependent killing. तो सबसे पहले CDK को अच्छे से समझते हैं. CDK concentration dependent killing. Concentration dependent killing. So here, more the concentration of the drug, more is the killing. ठीक है. At higher concentration, more killing activity will be seen, and given as a single high dose. So here what you will be experiencing, concentration dependent killing में more the concentration of the drug is there, more is the killing. ठीक है. So here you have to give a higher single dose, right? Higher single dose or single high dose or the first high dose, ताकि इमीडिएटली इट प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन एंड इमीडिएटली जो भी इन्फेक्शन है, जो भी इन्फेक्टिव एजेंट है, दैट डाइज, राइट. सो दिस मैकेनिज्म CDK concentration dependent killing is followed by aminoglycoside and fluoroquinolones. ठीक है. aminoglycoside and fluoroquinolones, AG and FQs. CDK concentration dependent killing is followed by aminoglycoside and fluoroquinolones, and this is the most important thing कि MCQ point of view से काफ़ी ज़्यादा important है. Then TDK means killing activity depends upon the time for which concentration of the drug remains above minimum bactericidal concentration. So इसका मतलब क्या है कि देयर इज सम थ्रेशोल्ड एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर ही बैक्टीरिया स्टार्ट्स डाइंग. ठीक है. ठीक है. सो अबव दैट मिनिमम, देखो मिनिमम मतलब कि अगर हम इमेजिन कर लेते हैं कि 50 mg ड्रग हमें मिनिमम चाहिए अगर हमें बैक्टीरिया को किल करना है, चाहे एक बैक्टीरिया मारे, लेकिन हमें 50 mg से ऊपर ड्रग चाहिए. सो वी ट्राई टू मेंटेन दिस 51 mg ड्रग इन द ब्लड. ठीक है. एंड फिर हम टाइम देते हैं अच्छे से ड्रग को टू एक्ट एंड टू किल द बैक्टीरिया, राइट. सो हेयर किलिंग एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम. Concentration will be same in the blood, but as the time is increased, then the bacteria will die. ठीक है. I hope this is understood. So TDK is time dependent killing, and killing activity depends upon the time for which concentration of the drug remains above minimum bactericidal concentration, and killing activity does not depends upon the concentration. And इसके अंदर we try to give a maintenance dose, and maintenance dose का मतलब क्या होता है कि हमें एक small dose frequently either अगर उसका plasma half life is good, bioavailability is good और excretion इतना ज़्यादा नहीं होता, then OD dose is fine, single daily dose is also fine, but हम इसको morning और evening dose भी करते हैं, right. Morning evening में we try to give a small doses, and we try to maintain the drug in the blood, and this same concentration
अगर मान लो डे 1 पर सेम कॉन्सेंट्रेशन है एंड इट किल्स द 2 बैक्टीरियाज, देन डे 5 पर it will be killing 200 bacterias, same drug, right? So ये imaginary है, तो just for understanding purpose, ठीक है। concentration dependent killing में क्या हो रहा था, with the increasing dose the killing of the bacteria was increasing, but here what is happening, with the increase in time the drug is normal, but एक चीज मेंटेन करनी है, that drug should be above minimum bactericidal concentration, ठीक है। MBC मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर होनी चाहिए ड्रग, एंड इवन एट लो डोजेस भी इनिशियल डेज में कम बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो होगा, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा देन इंक्रीज होता जाएगा वो बैक्टीरिसाइडल एक्शन। सो दिस फिनोमिना इज फॉलोड बाय बीटा लैक्टेम्स एंड देन वैनकोमाइसिन, बीटा लैक्टेम्स एंड वैनकोमाइसिन, ठीक है, बीटा लैक्टेम्स एंड वैनकोमाइसिन। देन AUCDK. So here killing activity depends upon the area under the PC time curve, right? So here peak concentration with the time curve में आपका जो भी एरिया दिख रहा है, this is the main cause of bactericidal action। और कैसे देखो, initially when you inject the dose or when you give the dose orally, तो blood में concentration 0 होती है, but slightly develops और blood में drug आती रहती है और फिर एक peak concentration अचीव हो जाती है। फिर ब्लड में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गई, अब हमारी जो एंट्री हो रही थी ड्रग की वो बंद हो गई। अब जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होगी तो एक्सक्रीट होगी, और धीरे धीरे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन जो पहले बढ़ी थी अब वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो नाउ द ड्रग इज एक्सक्रीटिंग एंड द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, एंड दस वी ऑब्टेन दिस ग्राफ। So here what is happening, with the increasing time initially on the administration of the dose, we will be seeing the increase in the dose, ठीक है। उसके बाद पीक कॉन्सेंट्रेशन आएगी, उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी विद द टाइम, ठीक है। तो ये एक जो कॉन्सेंट्रेशन कर्व आया, दिस कर्व के सो bactericidal action depends upon this curve, right? So this is the mechanism, और ये mechanism कौन कौन follow करता है? First is daptomycin and newer FQs like moxifloxacin. So this mechanism is followed by daptomycin and newer FQs like moxifloxacin, ठीक है, moxifloxacin and daptomycin. So yeah, we have discussed the three mechanisms: concentration dependent killing, time dependent killing, AUC dependent killing, ठीक है। And guys, in this we will be completing whole antibiotics in 2 to 3 hours, right? 2 to 3 hours or 3 to 4 hours। and अगर आपको फिर भी अगर इसमें कुछ समझ ना आए, then you can refer to our Pharmac Easy में antibiotic वाली series। So we have almost 13 to 14 sessions जिसके अंदर हमने अच्छे से एक एक क्लासिफिकेशन पे काम करा है और एक एक क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करी है, and I tried my best to make you and all the population understand the antibiotic in the easy way, right? So अगर आपको इस सेशन में कुछ भी समझ ना आए तो या तो पूछ सकते हो, और या आप वो चीज़ रेफ़र कर सकते हो, और वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अनअकैडमी पर ही, और यू कैन गूगल सर्च इट, और यूट्यूब पर भी सर्च करने पर मिल जाएगा। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So guys, till now we have studied that the classification based upon the sidal or the static action of the drug, ठीक है। अब हम mechanism of action पे बात करेंगे।
So guys, antibiotics they act by various mechanism. First is cell wall synthesis inhibitor. So ये क्या करेंगी, ये बैक्टीरिया की या ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल जो है वो सिंथेसिस ब्लॉक कर देंगी. उसकी वजह से जो सेल इंटीग्रिटी है, सेल रिजिडिटी है, क्योंकि सेल वॉल प्रोवाइड्स द सेल शेप प्रोटेक्शन, तो वो सब खत्म हो जाएगा और सेल अल्टीमेटली डाइज. ठीक है, और बैक्टीरिया अल्टीमेटली डाइज. देन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हो जाएगा, देन बैक्टीरिया नए प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा एंड अल्टीमेटली द बैक्टीरिया विल डाई. देन मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर जो कि सल्फोनामाइड्स होती है, ये आगे डिस्कस करेंगे. डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर. डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर हो गया तो नए प्रोटीन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, नए प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे और दस द bacteria will die. Then cell membrane inhibitor. Cell membrane inhibitor same as cell wall inhibitor. So first of all cell wall synthesis inhibitor की बात करते हैं. Cell wall synthesis inhibitors are the drugs that firmly bind to bacterial cell wall. So ये W की जगह V है because मुझे इसका निमोनिक बनाना था. So the drug that firmly bind to bacterial cell wall. So first is phosphomycin, beta-lactam, bacitracin, cycloserine and vancomycin. Phosphomycin, beta-lactam, bacitracin, cycloserine and vancomycin. So these are the drug and the mnemonic is firmly bind to bacterial cell wall, or the drugs that firmly bind to bacterial cell wall. First is phosphomycin, then beta-lactam, bacitracin, cycloserine and vancomycin. ठीक है. देन बीटा लैक्टेम्स. बीटा लैक्टेम्स के अंदर PCCM ड्रग्स हैं. PCCM, ठीक है, PCCM ड्रग्स हैं. फर्स्ट इज पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स. पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम. ठीक है. सो दीज वर द 4 ड्रग्स जो कि हमने बीटा लैक्टेम्स में पढ़ी थी. सो सबसे पहले पेनिसिलिन की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ड्रग और मोस्ट ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक इज़ पेनिसिलिन जी. सो पेनिसिलिन जी वॉज द फर्स्ट, कह लो, या सबसे पहले एंशियंट ड्रग है ये पेनिसिलिन की, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है. ऐसा नहीं समझना कि इसके काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं तो ये यूज़ नहीं आती. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है आज भी. ठीक है, आगे इसके इंडिकेशन में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन. सो गाइस, पेनिसिलिन जी की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती. फर्स्ट इज़ एसिड लेबाइल. एसिड लेबाइल मतलब वी कैन नॉट गिव इट ओरली देंगे देन स्टमक एसिड की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड नो एक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एसिड लेबाइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चलती है कि हमें जो भी न्यूअर पेनिसिलिन बनानी है वो होनी चाहिए एसिड रेजिस्टेंट. ठीक है, एसिड रेजिस्टेंट होनी चाहिए. सेकंड, ये है शॉर्ट एक्टिंग, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये एक्सक्रीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. सो ये एक और लिमिटेशन है. सेकंड ये होता है कि अब हमें एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बनानी है. ठीक है, चाहे पेनिसिलिन में बनाए. देन इट इज़ अ वेरी 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 नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड वी जस्ट डोंट वांट दिस नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. सो हम क्या करेंगे, तो हमें अब क्या करना है, हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बनानी है. देन penicillins are or penicillin G is resistant to beta lactamase. So basically there are strains that are resistant to beta lactams because they produce beta lactamase एंजाइम. सो बीटा लैक्टामेज एंजाइम की वजह से अगर उस बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टम्स जाएंगे, बीटा लैक्टम्स मतलब PCCM ड्रग्स, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स, तो अगर ये ड्रग्स जाएंगे तो ईजीली वो डिसोसिएट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अपना एक्शन शो नहीं कर पाएंगे. And some strains have developed penicillinase producing strains. So some have developed penicillinase enzyme. So जो भी ये penicillinase enzyme डेवलप कर लिया, तो जो भी penicillins हम उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो this penicillinase will destroy that penicillin and thus action will not be produced. So first of all हमने बात कर ली एसिड लेबाइल की, शॉर्ट एक्टिंग की, नैरो स्पेक्ट्रम की, देन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स की, बीटा लैक्टम प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स. ठीक है, तो ये बात हमने कर ली अच्छे से. देन ठीक है, ये बात हो गई. देन
अब हमें क्या देखना है कि अब हमें ऐसी चीज़ बनानी है जो कि इससे रेजिस्टेंट, जो भी ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, तो हमें अब इससे basically we want to develop a medicine or the antibiotic or a penicillin that will be resistant to the beta lactamase enzyme and the penicillinase enzyme. So अब हमें एक ऐसी penicillin बनानी है that will be resistant to the beta lactamase producing the beta lactamase enzyme and the penicillinase enzyme, ठीक है. देन पेनिसिलिन्स के काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस भी प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट्स द अनदर लिमिटेशन. एंड या ठीक है. देन अब हमने देख लिया कि जो न्यूअर एंटीबायोटिक्स या न्यूअर पेनिसिलिन्स हमें चाहिए, दैट शुड बी एसिड रेजिस्टेंट, दैट शुड बी लॉन्ग एक्टिंग, that should be having broader spectrum, that should be having resistant to the beta lactamase enzymes and the penicillinase enzymes, ठीक है. आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, एंड अगर आ गया तो थम्स अप दे दो, एंड देन वी विल बी प्रोड्यूसिंग फर्दर. एंड सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. शुड वी प्रोसीड? शुड वी प्रोसीड? Yeah. So now acid resistant penicillins. So जैसे मैंने कहा कि because of the limitations we know that now what we have to produce or now what we have to discover. So now अब क्या discover हुआ? Acid resistant penicillins. Acid resistant penicillins, right? So first of all पेनिसिलिन जी की जो भी डिसएडवांटेज थी, दैट वाज एसिड लिपाइल. एसिड लिपाइल. सो वी ट्राइड टू फॉर्म एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, एंड फर्स्ट इज पेनिसिलिन 5, ऑक्सासिलिन, डिक्लॉक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, राइट. सो दीज ऑल आर एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स, राइट. सो पहली लिमिटेशन पे तो हम ओवरकम कर लिए, ठीक है, दैट वाज एसिड लिपाइल, राइट. सो द ड्रग्स वर पेनिसिलिन 5. सो पेनिसिलिन 5 वाज द फर्स्ट ड्रग टू डेवलप एसिड रेजिस्टेंट, राइट. फर्स्ट पेनिसिलिन ड्रग दैट डेवलप्ड एसिड रेजिस्टेंस. देन ऑक्सासिलिन, डिक्लॉक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, then ampicillin and amoxicillin. Ampicillin and amoxicillin are under extended spectrum also. So इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे डीप में, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन के बारे में. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फिर सेकेंड लिमिटेशन क्या थी? पहली लिमिटेशन पे तो हमने सक्सेस पा ली. सेकेंड लिमिटेशन वाज कि दीज ड्रग्स आर वेरी शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग. सो शॉर्ट एक्टिंग की वजह से नाउ वी वांट दैट अ ड्रग शुड बी हैविंग इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, राइट. सो we prefer to give the drug with probenecid. So you all know penicillin and probenecid एक synergistic approach है. They try to increase, probenecid basically tries to increase the penicillin action. So क्या होता है, probenecid और penicillin दोनों के दोनों blood stream में होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, दोनों की बात चल रही होती है, और बात जब चल रही होती है तो प्रोबेनेसिड पेनिसिलिन से काफ़ी ज़्यादा लगाव करता है, तो सच्चा प्यार करता है. तो क्या कहते हैं प्रोबेनेसिड पेनिसिलिन को कि आई विल एक्सक्रीट, सो मैं क्या करूँगा, मैं खुद एक्सक्रीट हो जाऊँगा, लेकिन आप अपना काम करते रहो. सो प्रोबेनेसिड जो है वो यही काम करता है. प्रोबेनेसिड OATP पंप पर जो कि एक्सक्रीटरी प्रोसेस में OATP पंप पे जाता है. OATP पंप से क्या करता है, पेनिसिलिन जो भी यूरिन में होती है ना, जो भी पेनिसिलिन यूरिन में होती है, सो यहाँ इमेजिन करो यूरिन है और यहाँ इमेजिन करो ब्लड है. सो ब्लड में प्रोबेनेसिड और पेनिसिलिन दोनों है, ठीक है. यूरिन में पेनिसिलिन इजीली रेडिली एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है. तो अब यूरिन में एक्सक्रीट होने से यूरिन के आउटफ्लो से पहले OATP पंप आता है. OATP पंप पे क्या करता है ये प्रोबेनेसिड गोज टू द OATP पंप
और ये OATP पंप इज अ टाइप ऑफ एक्सचेंजर. सो अब क्या होगा, प्रोबेन एसिड कहेगा मैं जाऊंगा यूरिन में, और पेनिसिलिन को ये धक्का मार के अंदर भेज देता है ब्लड में. सो ब्लड में अल्टीमेटली पेनिसिलिन की क्वांटिटी तो बढ़ गई ना, राइट. सो प्रोबेन एसिड खुद एक्सक्रीट हो जाता है एंड पेनिसिलिन को वापस भेज देता है. एंड इफ़ यू डोंट नो, देन प्रोबेन एसिड इज़ अ यूरिकोसूरिक ड्रग. सो जिन पेशेंट्स को गाउट की दिक्कत होती है, गाउटी अर्थराइटिस होता है, जिन पेशेंट को इंक्रीज यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, हाइपर यूरिसीमिया की प्रॉब्लम होती है, देन उनके अंदर बेसिकली वी गिव प्रोबेन एसिड एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल. सो अब इंक्रीज ड्यूरेशन पहले तो हम प्रोबेन एसिड को देकर भी कर सकते हैं पेनिसिलिन के साथ, बट नाउ वी हैव डेवलप्ड डेपोट प्रिपरेशंस. सो बेंजाथीन पेनिसिलिन जी एंड प्रोकेन पेनिसिलिन जी. सो डिपॉट प्रिपरेशन मतलब ये एक ऑयली प्रिपरेशन है पेनिसिलिन जी की, जो IM रूट के थ्रू हम देते हैं. एंड इट इज़ अ लॉन्गर एक्टिंग ड्रग. बिकॉज लॉन्गर एक्टिंग कैसे है, हम एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग ऑयल में मिक्स करके मसल में इंसर्ट कर रहे हैं. वहाँ पर स्लोली एंड स्टेडीली इट विल एब्जॉर्ब एंड इट विल प्रोड्यूस इट्स एक्शन, एंड दस धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होती जाएगी, धीरे धीरे वो एक्शन शो करती जाएगी. एंड राइट, सो इतना हो गया. अब बात करते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन. सो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, सो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में नाउ हमने देख लिया था कि यार एसिड रेजिस्टेंट भी हमने डेवलप कर ली, हमने इंक्रीज ड्यूरेशन का भी देख लिया कि कैसे करना है. नाउ अब नैरो स्पेक्ट्रम का कुछ इलाज करना पड़ेगा, बिकॉज पेनिसिलिन्स आर हाईली नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स. सो अब नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है तो हमें इसकी स्पेक्ट्रम बढ़ानी है. देन वी डेवलप्ड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंड एम्पीसिलिन, एमॉक्सीसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन एंड पिपरासिलिन. These are the drugs जो कि extended spectrum penicillin है, and these drugs are anti-pseudomonal drugs as well. So these are anti-pseudomonal drugs as well. So ampicillin, amoxicillin, carbanicillin, ticarcillin, meslocillin, azlocillin, piperacillin. So these are anti-pseudomonal drugs as well, right? I hope समझ में आ रहा होगा. Yeah, so let's just move forward and yeah, I hope till now everything is going good. You all are understanding the things, and yes. So now still we were having the resistivity issues. So क्या हो रहा था कि पेनिसिलिन्स, क्या हो रहा था कि बैक्टीरियाज वर डेवलपिंग द रेजिस्टिव स्ट्रेन्स. सो बैक्टीरियाज ने डेवलप कर लिए थे फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स, बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स. देन बैक्टीरिया ने पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स भी डेवलप कर दिए थे, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स भी डेवलप कर दिए थे. ठीक है, सो बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स भी डेवलप हो गए थे, पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स भी डेवलप हो गए थे, एंड thus we are having the resistivity issues. Now what to do? So we try to develop a substance या एक केमिकल जो कि ये इसके अगेंस्ट हो. ठीक है,
जहाँ भी बीटा लैक्टामेज आए वो उसको रेजिस्टिविटी, हम खुद भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं इससे, ठीक है, बीटा लैक्टामेज से. सो नाउ वी ट्राई टू गिव क्लेवुलोनिक एसिड विद एमोक्सिसिलिन, सल्बैक्टम विद एम्पिसिलिन एंड टेजोबैक्टम विद पिप्रासिलिन. सो वी डेवलप्ड दिस बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स, जो कि बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन को इनहिबिट कर देते हैं एंड स्टॉप कर देते हैं, एंड दस एमोक्सिसिलिन अपना काम कर देती है, या एम्पिसिलिन अपना काम कर देती है, या पिपरासिलिन अपना काम कर देती है, ठीक है. सो क्लेवुलोनिक एसिड की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्लेवुलोनिक एसिड विद एमोक्सिसिलिन. सो ये काफ़ी सारे ब्रांड नेम्स के अंडर बनता है, आता है, एंड दीज ड्रग्स आर नोन फॉर देयर बायो इक्विवेलेंस, राइट. एक सेकेंड, बस मुझे इसको थोड़ा क्लीन करने दो. या सो एमोक्सिसिलिन with clavulanic acid, this is the best combo, and it comes under the name as Duclave 625, Amoxiclave 625, in which 500 mg is of amoxicillin and 125 mg is of clavulanic acid, and a very famous name is Augmentin 625. So these are the various combinations, and काफ़ी सारे combinations आते हैं, and yeah. So now we developed the penicillinase resistant penicillins as well. So cloxacillin, oxacillin, nafacillin, dicloxacillin, methicillin. So these are the drugs that are penicillinase resistant, right. But ये वाली drugs use नहीं हो पाती आजकल. And now allergic reaction. So if a patient is allergic to one penicillin, then he or she will be allergic to all the beta lactams except the monobactams. So if patient is allergic to one penicillin, he or she will be allergic to all the beta lactams except the monobactams. So it is telling you about the cross reactivity. So right, so here PCCM drugs हैं बीटा लैक्टेम्स में, ठीक है. सो बीटा लैक्टेम्स में if a patient is having allergy to even penicillin, amoxicillin, ampicillin, or you can say third generation cephalosporin में है, ceftriaxone है, cefexime है, उससे एलर्जिक है. सो मैं कह रहा हूँ कि एक ड्रग किसी भी ग्रुप की उठा लो, ठीक है. Either you can take ampicillin, or here you can say cefexime, ceftriaxone, या कुछ भी ले लो. कार्बापेनेम्स में इमिपेनेम ले लो, मोनोबैक्टेम्स में कोई ले लो, ठीक है. सो यहाँ आई वांट टू टेल यू कि अगर कोई भी पेशेंट पेनिसिलिन से या एम्पिसिलिन लिया था ना, तो एम्पिसिलिन से अगर एक पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया, ठीक है, एम्पिसिलिन से एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया, राइट. नाउ व्हाट विल हैपन, आप ये ड्रग बंद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है. फिर आपने सोचा कि इसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो यार थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, सेफ्ट्रैक्सोन दे देता हूँ इस पेशेंट को. आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं हुई थी, इंटर्नशिप में थे आप और आपके ऊपर कोई भी सीनियर नहीं था, और आपने सेफ्ट्रैक्सोन दे दी इस पेशेंट को. सेफ्ट्रैक्सोन दे दी तो फिर से एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया, राइट. फिर बात आई इमिपेनेम की. इमिपेनेम वैसे इट इज़ नॉट गिवन, ऐसे ही नहीं दी जाती. इमिपेनेम काफ़ी ज़्यादा एपिलेप्टोजेनिक ड्रग है, राइट. सो इमिपेनेम दी आपने, इमिपेनेम से भी एलर्जिक रिएक्शन डेवलप हो गया, राइट. सो मतलब कि PCC ये जो कॉम्बो है, ये सारे क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन
क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन, क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। PCCM ऑल शो द क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस, राइट। नाउ अब क्या बचा, एम, मोनोबैक्टम। सो ये मोनोबैक्टम नहीं करता ये क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन। अगर अ पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन देन वो मोनोबैक्टम से नहीं होगा एलर्जिक, राइट। अगर मोनोबैक्टम से एलर्जिक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पेनिसिलिन से भी एलर्जिक हो, या सेफ्ट्राक्सोन से एलर्जिक हो, या इमिपेनिम से एलर्जिक हो, ज़रूरी नहीं है। और अगर इन सब से एलर्जिक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोनोबैक्टम से भी एलर्जिक हो। और यही डिफरेंस है PCC और M में, PCC और M में, ठीक है। PCC एक ग्रुप बन गया, M अलग हो गया, राइट, क्रॉस एलर्जिक रिएक्शंस में, ठीक है। नाउ पेनिसिलिन जी के इंडिकेशन। सो पेनिसिलिन जी के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल इंडिकेशंस हैं, इसको प्लीज़ दिमाग खोल के कर लेना, बिकॉज सबको लगता है पेनिसिलिन जी एक फालतू सी ड्रग है, इसमें सिर्फ लिमिटेशंस ही हैं और इसको हम काम में नहीं ले सकते, बट इट इज़ हैविंग मैनी 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 इंडिकेशंस, और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंडिकेशंस हैं। मतलब जैसे एक ड्रग तो होती है ना जो यूनिवर्सल ड्रग है, मान लो कि ये इन्फेक्शन हुई तो ये भी यही ड्रग दोगे, ये हुई तो भी यही दोगे, ये हुई तो भी यही दोगे, ये हुई तो भी यही दोगे, ठीक है। ये तो हो गई एक यूनिवर्सल ड्रग। बट काफ़ी सारी इन्फेक्शन होती है जहाँ पर अगर एक ड्रग भी काम आ जाए ना तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, जैसे कि सिफिलिस। एंड पेनिसिलिन जी इज यूज्ड इन सिफिलिस इन्फेक्शन, दैट्स वाई ये इसकी इम्पोर्टेंस है। पेनिसिलिन की कहीं भी इम्पोर्टेंस मत लिखो, बट पेनिसिलिन जी के इंडिकेशंस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। सो पेनिसिलिन जी के जो इंडिकेशंस हैं, दैट इज हैविंग अ निमोनिक इज लास्ट मैन, एंड लिस्टेरिया, एक्टिनोमाइकोसिस, सिफिलिस, टेटनस, meningococcus, anthrax. So anthrax is the another important indication. So syphilis, tetanus and anthrax, ये तीन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं, राइट। आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ोगे और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं ये तीन, सिफिलिस, टेटनस एंड एंथ्रैक्स, ठीक है। लिस्टेरिया में ड्रग ऑफ चॉइसेस एम्पिसिलिन, एक्टिनोमाइकोसिस में भी दे सकते हो आप, मेनिंगोकोकस में द ड्रग ऑफ चॉइसेस सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। बट सिफिलिस, टेटनस, एंथ्रैक्स में यही ड्रग ऑफ चॉइस एंड वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन. So these are the very much important indications of the penicillin G, right? Now syphilis, ठीक है. सिफिलिस के अंदर सबसे पहले तो आप ये याद कर लो, डिपॉट प्रिपरेशंस जो अभी हमने करे थे ना, जो मैंने अभी बताया था कि ऑयल में पेनिसिलिन जी को डिज़ोल्व करके देते हैं आईएम रूट से, तो डिपॉट प्रिपरेशन काम आते हैं, ठीक है. डिपॉट प्रिपरेशंस, ठीक है. सो अगर आपको पता है तो सिफिलिस इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्चरी, एंड देन न्यूरोसिफिलिस एंड ऑल, राइट. सो प्राइमरी सिफिलिस की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सिफिलिस के अंदर आपके इनिशियली जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं, बट ब्लड पिक्चर पॉजिटिव होती है, ठीक है. सेकेंडरी सिफिलिस में काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, ब्लड पिक्चर भी पॉजिटिव होती है. लेटेंट के अंदर फिर से सिम्टम्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े सबसाइड हो जाते हैं, राइट, बट ब्लड पिक्चर पॉजिटिव होते हैं. टर्चरी में ब्लड पिक्चर नेगेटिव हो सकती है, राइट. टर्चरी में ब्लड पिक्चर चाहे नेगेटिव भी हो गई, बट सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है. सो प्राइमरी सिफिलिस के अंदर अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी इज गिवन, IM route 2.4 MU. Benzathine penicillin G, that was a depot preparation of the penicillin G, and that is used for increasing in the duration of time, ठीक है, duration of action. सेकेंडरी सिफिलिस में भी यही यूज होता है, सिंगल इंजेक्शन ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी IM रूट, राइट. बट नाउ कम्स द लेटेंट फेज. लेटेंट फेज में व्हाट इज यूज? लेटेंट फेज के अंदर 3 इंजेक्शन ऑफ द बेंजाथीन पेनिसिलिन जी इज गिवन वंस अ वीक,
एंड IM रूट 2.4 MU, ठीक है. 3 इंजेक्शन थ्रू IM रूट ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन G वंस अ वीक, ठीक है. नाउ न्यूरोसिफिलिस फैल चुकी है. नाउ ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन G. यू कैन गिव एक्वस और क्रिस्टलाइन, and procaine penicillin can also be used for the treatment, yeah, right. So penicillin G syphilis के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा important है. Then tetanus. So drug of choice and the first line drug for tetanus is penicillin G. तो drug of choice and the first line drug for tetanus is penicillin G, ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो यूज मेट्रोनिडाजोल फॉर द टेटनस, ठीक है. सिफिलिस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन G. टेटनस के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन G ओनली. देन मेनिंगोकोकाई के अंदर जैसे मैंने कहा था सेफ्ट्राक्सोन. सो ट्रीटमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू. फर्स्ट इज एम्पेरिकल थेरेपी, देन डेफिनेटिव थेरेपी. एंड जनरली एम्पेरिकल थेरेपी से ही ट्रीटमेंट हो जाता है. पेनिसिलिन G देने की ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती. तो empirical treatment is through ceftriaxone, the third generation cephalosporin, and that is the best drug that is given nowadays for meningococcal infections or the meningitis you can say, ठीक है. meningitis के अंदर थर्ड जनरेशन cephalosporin. थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे, स्लो हमने अच्छे से कर रखा है, यू नो. सो थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे. तो अगर स्लो चलना हो तो मुझे बोल देना, बट आई होप कि अभी तक ठीक ही चल रहा होगा. इतना ज़्यादा भी फास्ट नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा स्लो ही चल रहा हूँ अभी तक. तो मेनिंगोकोकाई की एम्पेरिकल ट्रीटमेंट सेफ्ट्राक्सोन. देन प्रिवेंशन के लिए भी सेफ्ट्राक्सोन इज गिवन. सेफ्ट्राक्सोन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज सेफर ड्रग. ciprofloxacin is contraindicated in pregnancy. And ciprofloxacin can also be used in place of ceftriaxone for the prevention of the meningococci. Then now comes the anthrax. Anthrax में भी जैसे मैंने आपको कहा था SAT में syphilis, anthrax and tetanus. syphilis के अंदर भी drug of choice was this but depot preparation of penicillin G, benzathine penicillin G. And anthrax में भी drug of choice or the first line drug is penicillin G. And you can use ciprofloxacin but at a later rate. ज़्यादा importance penicillin G की ही है. Then tetanus में भी the drug of choice and the first line drug was penicillin G, but you can use metronidazole as well. So कि SAT काफ़ी ज़्यादा important है penicillin G को समझने के लिए, ठीक है. Now new penicillins use, ठीक है. पेनिसिलिन्स के काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करी जाती है पेनिसिलिन्स. और तभी वी हैव डेवलप्ड. सो पहले क्या होता था और आजकल भी यही होता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जगह पर इसकी रेजिस्टिविटी नहीं हुई है पेनिसिलिन्स की. तो सोर थ्रोट हुआ एंड इट वॉज बिलीव दैट स्ट्रेप की वजह से है, राइट. सोर थ्रोट होते ही सबसे पहले ड्रग कौन सी दी जाती है? एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलोनिक एसिड, ठीक है. एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवलोनिक एसिड, हो गया काम खत्म. यही दी जा रही थी, एक्सप्लॉइट हो चुकी है एमॉक्सिसिलिन क्लेवलोनिक एसिड. पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ और अराउंड ये 30-40 साल से एमॉक्सिसिलिन और क्लेवलोनिक एसिड यूज़ हो रही है, ठीक है. अब क्या हो गया, एमॉक्सिसिलिन और क्लेवलोनिक एसिड का रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है. और मतलब कि क्या हो रहा है कि नाउ द बैक्टीरियाज आर रेजिस्टेंट टू एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवलोनिक एसिड. तो अब आप ये अगर ड्रग लेते रहोगे तो इसका असर नहीं होगा, ठीक है. एंड नाउ यू विल आस्क कि अब पेशेंट को क्या देंगे? सोर थ्रोट में इट वाज रेडिली गिवन. नाउ व्हाट इज द ड्रग फॉर द सोर थ्रोट? तो द ड्रग दैट इज गिवन नाउअडेज फॉर द सोर थ्रोट इज सेफेक्साइम, ठीक है. सेफेलोस्पोरिन की सेफेक्साइम इज गिवन रेडिली.
right? Cefixime. So that is also a potent drug for treating the infections, ठीक है. और ये सिर्फ हमारी वजह से ही इसकी क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, बिकॉज हम इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुकी है. एंड काफ़ी सारे डॉक्टर्स तो जैसे जिन्होंने एक कॉम्बो बनाया होता है कि एंटीबायोटिक्स देंगे, एक देंगे पैरासीटामोल और एक देंगे स्टेरॉयड. सो ऐसे 3 ड्रग का कुछ ऐसा बनाया होता है. तो वो तो रेडीली एमॉक्सिसिलिन यूज़ करते थे. और पेशेंट एक बार हुआ या उसको सोर थ्रोट हुआ, गले में दर्द हुआ, एक बार सोर थ्रोट हो गया, ठीक है, फेरेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है. तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको ये वाली ड्रग दे दी. अब उस पेशेंट को कभी भी गले में दर्द होगा ना, वो अपने आप केमिस्ट के पास जाएगा और ये ड्रग ले आएगा एंड वो ले लेगा, ठीक है. 5 दिन का कोर्स कर लेगा, 3 दिन का कर लेगा. तो बैक्टीरिया को पता चल गया कि भाई ये ड्रग है, बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया इसके खिलाफ. एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट हम अब सुपर बग्स की स्टेज पे जाते जा रहे हैं, बिकॉज हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना बंद नहीं कर रहे, और बंद हो भी नहीं सकता, बिकॉज इन्फेक्शन हुआ, पेशेंट आया तो हमें देनी ही पड़ेगी. हम पेशेंट को थोड़ी ना बता सकते हैं, और सारे पेशेंट कोई मेडिकल लाइफ से थोड़ी ना आए होते हैं, या सारे पेशेंट को मेडिकल नॉलेज थोड़ी ना होती है. और अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वो हमें गाली दे के चले जाएंगे. सो दैट्स व्हाई ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. इन्फेक्शन को ट्रीट करना इज़ ऑल्सो नेसेसरी, पेशेंट को सेटिस्फाई करना इज़ ऑल्सो आर नेसेसरी, प्लस रेजिस्टेंट डेवलप ना हो वो भी हमें देखना है. सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्रग थी एमॉक्सिसिलिन, बट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है एमॉक्सिसिलिन के खिलाफ. एंड या सो वी हैव टू लुक इनटू इट. और ऑलरेडी सुपर बग्स डेवलप होते जा रहे हैं. सो न्यू यूज़ पेनिसिलिन के क्या क्या है, न्यूअर इंडिकेशंस जो कि आजकल रेडीली यूज़ होती है पेनिसिलिन के कहाँ. सबसे पहले तो मेनिंजाइटिस, बट मेनिंजाइटिस में वी यूज़ सेफ्ट्राक्सोन मोस्टली. सो मेनिंजाइटिस के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं यार, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. और उस टाइप के बेसिस पर वी हैव क्लासिफाइड द ड्रग्स कि इस टाइप का तो कौन सी ड्रग देंगे, अगर ये है तो कौन सी ड्रग देंगे. सो हम उसको इतना डीप में नहीं जाएंगे अभी, वो मेडिसिन में चलेंगे किसी दिन. जब मेडिसिन का मेनिंजाइटिस करेंगे तो उस दिन अच्छे से चलेंगे. देन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेनिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन वाज रेडीली यूज. टाइफाइड फीवर के अंदर, बेसिलरी डाइसेंट्री के अंदर, कोलेसिस्टाइटिस के अंदर, एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन के अंदर, इन पेप्टिक अल्सर, यूटीआई के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज इज नॉरफ्लॉक्सासिन एंड गोनोरिया के अंदर भी, ठीक है. सो penicillin is used in meningitis, in the respiratory tract infection, in the tonsillitis, in the sore throat, in the pharyngitis. and pharyngitis भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, और मेरे चैनल पे डिस्कस करूँगा मैं, नहीं तो. then typhoid fever, bacillary dysentery, cholecystitis, and H. pylori infection, then UTI. But in UTI norfloxacin is mostly used than the penicillin. Then gonorrhea, then cephalosporins. So guys, cephalosporins की बात करते हैं. cephalosporins कैसे याद करनी है. So सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लो कि cephalosporin में जो 3rd जनरेशन cephalosporin होती है, जिसको हम सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं, सो 3rd जनरेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव ऐसा माना जाता है, और 3rd जनरेशन ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसा भी माना जाता है. एंड इसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि 3rd जनरेशन cephalosporin कैन कॉज सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है. इसको अच्छे से याद कर लेना. 3rd जनरेशन cephalosporins causes pseudomembranous colitis, और pseudomembranous colitis को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि what is the treatment of pseudomembranous colitis, which drug can cause pseudomembranous colitis. One is 3rd जनरेशन cephalosporin and काफ़ी सारी और भी हैं. देन कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है pseudomembranous colitis, और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है pseudomembranous colitis का, ठीक है.
सो इसको हम आगे 3-4 स्लाइड में ही आने वाला है ये. देन नाउ वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. सो गाइस फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो जिसमें भी आपको फा वाला प्रोनाउंसिएशन आ रही है, जैसे फा, PHA एंड फ्रा, फ्रा, फा, ठीक है. सो ये है फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स. सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफालोथिन, सिफ्राडीन. सो इसके अंदर आपको सब में या तो FA दिखा है, या फा दिखा है, या फ्रा दिखा है, ठीक है. सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफालोथिन एंड सिफ्राडीन, ठीक है. देन थर्ड जनरेशन के अंदर एक तो या तो आइम आएगा या वन आएगा, वन या आइम. लाइक सेफ्ट्रायाक्सोन वन आ गया. सेफ्पोडॉक्साइम, देन सेफ्टीजॉक्साइम, देन सीफोटाक्साइम, सेफ्टाजिडिम, सेफेक्जिम, ठीक है. सेफेक्जिम को कई बार सेफेपिम भी लिखते हैं. और सो दीज आर द थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. एंड मोक्सालैक्टेम इज एक्सेप्शन, ठीक है. ना लिखो तो भी चलेगा, बट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना मोक्सालैक्टेम, बिकॉज ये कई बार लग जाता है कि मोनोबैक्टेम के अंदर आएगा, और मोक्सालैक्टेम इज अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. देन फोर्थ जनरेशन के अंदर जिसमें P आए, सेफेपाइम, सेफिरॉल, सेफेपाइम एंड सेफपिरॉल. सो दिस इज द फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. फिफ्थ जनरेशन के अंदर सेफ्टिब्रॉल एंड सेफ्टारोलिन, सेफ्टिब्रॉल एंड सेफ्टारोलिन. सो जिसके अंदर सेफ्ट आए वो है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है. नाउ सेकेंड जनरेशन के अंदर कोई भी सब कुछ ऐसे अलग लग रहा हो. सो सेकेंड जनरेशन वो होगी जिसके अंदर ना तो फा आ रहा है, ना फा आ रहा है, ना फ्रा आ रहा है, ना आइम आ रहा है, ना वन आ रहा है, ना PI आ रहा है, ना सेफ्टी आ रहा है, ठीक है. सेफ्टी या सेफ्ट आ रहा है, ठीक है. सो ऐसी ड्रग जिसके अंदर ये कुछ भी नहीं आ रहा हुआ है सेकेंड जनरेशन, ठीक है. एंड सेफॉक्सिटिन, सेफप्रोजिल, सीफोटाइटैन, सेफमिटाजोल. दीज आर द ड्रग्स. एंड इसके काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी हैं. सेफिरोक्साइम एक्सेटिल एंड सी फैल्कोर. सो ये है इसके एक्सेप्शन. सी फैल्कोर अगर आएगा तो आप फर्स्ट जनरेशन मत करना. इट इज अ सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ठीक है. सी फैल्कोर, फा आ रहा है बट ये फर्स्ट नहीं है, ये सेकेंड है, ठीक है, ठीक है. एंड सेफिरोक्साइम एक्सेटिल एंड क्या. सो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं अब. एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, फर्स्ट इज देखो हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव होता जाएगा. और थर्ड वाले में सब होगा तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है. सो सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव. फर्स्ट जनरेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव. सेकेंड जनरेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव. थर्ड जनरेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम. So third generation is the widest spectrum cephalosporin, ठीक है, widest spectrum. फोर्थ जनरेशन के अंदर ग्राम पॉजिटिव हट गया, ओनली ग्राम नेगेटिव. एंड फिफ्थ जनरेशन के अंदर स्पेशल मिसलेनियस बैक्टीरियाज या मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ठीक है. Antimicrobial spectrum of cephalosporins: first generation gram positive, second generation gram positive plus gram negative, third generation gram positive, gram negative plus wider spectrum, fourth generation gram negative and fifth generation special class जैसे कि methicillin resistance या Forius के against ये effective है. Then bile secreted cephalosporin जैसे कि safe in renal failure, cefoperazone, ceftriaxone. Bile secreted cephalosporins. बाइल सिक्रेटेड सेफेलोस्पोरिन्स मतलब कि लीवर मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेगा, किडनी नहीं लेगी. सो अगर लीवर पार्ट लेगा देन
दीज ड्रग्स आर सेफ इन रीनल फेलियर पेशेंट बिकॉज सारी की सारी जो भी एक्सक्रीशन होगी, मेटाबोलाइजेशन होगी, वो लीवर के अंदर होगी, किडनी के अंदर नहीं होगी. तो इवन इफ पेशेंट इज हैविंग ARF या CRF तो हम ये दे सकते हैं अगर कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो. ठीक है. Ceftriaxone and ceftriaxone are the two drugs that are safe in renal failure patients. Then anti-pseudomonal cephalosporins. So anti-pseudomonal cephalosporins के अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंटी-सुडोमोनाल पेनिसिलिन देख ली थी जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम था, वो सब वाज एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास एज वेल. ठीक है. पेनिसिलिन जी, क्लॉक्सासिलिन वगैरह नहीं थी, बट जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम थी वो सारी एंटी सुडोमोनाल थी. देन जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं उसमें एंटी सुडोमोनाल जिसमें P आ रहा है. ठीक है. द ड्रग्स दैट आर हैविंग P इन देम, जैसे कि सेफेपाइम, सेफपिरोम, सीफोपीराजोन. दीज आर द 3 ड्रग्स जिसके अंदर P आ रहा है एंड ये एंटी सुडोमोनल सेफेलोस्पोरिन है. ठीक है. सेफेपाइम, सेफपिरोम, cefoperazone, and the most effective anti-pseudomonal drug is ceftazidime. So anti-pseudomonal cephalosporin, cefepime, cefpirom, cefoperazone and ceftazidime. Ceftazidime does not contain P, but ceftazidime is most effective anti-pseudomonal drug. Then disulfiram like action. Disulfiram like action मतलब कि ये वाली ड्रग अगर हम अल्कोहल के साथ देंगे तो पेशेंट को अनईजीनेस होगी, बिकॉज काफ़ी सारा एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी के अंदर. सो मोक्सोलैक्टम, दैट इज़ द सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, जैसे हमने डिस्कस करा. नहीं, दिस इज द 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. सीफोपिराजोन, cefotitan and cefomandol. So these all are the drugs that will be having disulfiram like action. Then uses of the cephalosporin. Antibiotic spectrum cover wide range of the gram-positive and the gram-negative bacteria, and ENT, URTI, upper respiratory tract infection, cutaneous infection, they are alternative to penicillins. And they are effective against gram-negative bacteria like Proteus, Klebsiella and Enterobacter, septicemia, meningitis, gonorrhea, typhoid. So these are very much useful in these all disorders. Plus they are effective in they are effective against Pseudomonas as well. So that's why. ठीक है. So हमने ये बात तो अच्छे से डिस्कस कर ली है. And yeah, we should just now move to carbapenims. कुछ तो गलत लग रहा है यार. डाइसल्फिराम लाइक एक्शन में मोक्सोलैक्टम, सीफोपिराजोन, सीफोटिटान, सीफोमेंडॉल. Yeah, these all are the drugs, and these are right. Fifth नहीं है. हाँ. So guys, moxolactam is a 3rd generation cephalosporin. 3rd generation cephalosporin. And these drugs will be having डाइसल्फिराम लाइक एक्शन. ठीक है. मतलब अल्कोहल के साथ लिया तो फिर वो डिहाइड्रोजनेस वाला ब्लॉक हो जाएगा और सारा का सारा जो वो है वो सब अनईजीनेस प्रोड्यूस करेगा पेशेंट के अंदर, एंड दस पेशेंट को अल्कोहल लेने के बाद प्रॉब्लम होगी. सो मेरा फ़ोन हो चुका है स्विच ऑफ और मैं लाइव चैट नहीं देख पा रहा हूँ. So let me bring my charger, and I am very sorry for this. Wait a second.
No, I'm not having my charger here. Wait a second, एक सेकंड के अंदर आ रहा हूँ बस. Wait one more second. Yeah. एक सेकेंड. Yeah. So guys, before starting carbapenims, let's just revise what we have learned till now. एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट से करेंगे जब तक एक बार फ़ोन चार्ज हो जाए. आई एम वेटिंग फॉर द फोन. लाइव चैट नहीं पता चलती तो पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है. कभी कुछ समझ ना आ रहा और मैं आगे पढ़ाता जाऊँ तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना. आप डिसलाइक करके चले जाओगे और वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब होगी. बिकॉज लाइव सेशन का फ़ायदा ही यही होता है कि यू कैन चैट विद योर एजुकेटर. अगर लाइव नहीं होगा, अगर मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो को ऐसे प्रीमियर पे लगवा दूँ तो आप क्वेश्चन पूछते रह जाओगे बट आंसर नहीं होगा उसका. चाहे मैं बाद में भी लाइव चैट देख लूँ प्रीमियर वाली, चाहे मैं कमेंट में भी देख लूँ, बट आपको तो नहीं पता चलेगा ना कि मैंने कौन से सेशन में आपका डाउट क्लियर करा. समझ लो बात को. सो दैट्स वाई लाइव चैट इज़ वेरी मच नेसेसरी. और एक सेकेंड बस. यस. सो हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द साइडल एंड द स्टैटिक एक्शन. साइडल में हमने बात करी थी बेवफा ड्रग्स, बीटा लैक्टम, वैनकोमाइसिन, एफक्यूज, एमाइनोग्लाइकोसाइड. एंड स्टैटिक में हमने बात करी थी सेक्टेल ड्रग्स. ठीक है. देन बैक्टीरियोसाइडल के अंदर हमें फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्कस करना था सीडीके, टीडीके एंड एयूसीडीके. concentration dependent killing, time dependent killing and area under the curve dependent killing. So these three things we have studied. CDK is followed by aminoglycoside and fluoroquinolones, and TDK is followed by the beta lactams जो कि PCCM drugs and vancomycin, and AUCDK is followed by the daptomycin and newer FQs like moxifloxacin. ठीक है. Then classification based upon the mechanism of action. So basically your antibiotic or antimicrobial agent, they act through blocking the cell wall synthesis, protein synthesis inhibitor, metabolism inhibitor, DNA synthesis inhibitor, cell membrane inhibitor. ठीक है. But first we have started with the cell wall synthesis inhibitor. Cell wall synthesis inhibitor is having a mnemonic: the drugs that firmly bind to the bacterial cell wall, like phosphomycin, beta-lactam, bacitracin, cycloserine, vancomycin. These are all the drugs that comes under the cell wall synthesis inhibitor. ठीक है.
सो ये चीज़ हो गई. देन बीटा लैक्टेम्स में PCCM ड्रग्स पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनिम एंड मोनोबैक्टम. सो वी हैव डन पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन. सो पेनिसिलिन जी के limitations: acid, it is an acid labile antibiotic. It is short acting. It is having very narrow spectrum. It is not sensitive for the beta lactam producing strains and penicillin producing strains. So यहाँ ineffective हो जाती है. Then it also produces the allergic reactions. ठीक है. Then फिर हमने डेवलप करी एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन 5, ऑक्सासिलिन, डिक्लॉक्सासिलिन, क्लॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन. देन इंक्रीज ड्यूरेशन के लिए वी प्रिपेयर्ड डिपॉट प्रिपरेशन, बेंजाथीन पेनिसिलिन एंड प्रोकेन पेनिसिलिन, एंड दीज आर वेरी मच यूजफुल इन द सिफिलिस, द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस. राइट. देन अगर हमें थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ानी भी है, देन हम प्रोबेन एसिड को दे सकते हैं साथ में. देन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. So सबसे पहले, so these are anti-pseudomonal drugs. They all are effective against pseudomonas. Ampicillin, amoxicillin, carbanicillin, ticarcillin, meslocillin, azlocillin and piperacillin. Then beta lactamase inhibitor, clavulanic acid, sulbactam, tazobactam. So these are the beta lactamase substances या chemicals that we combine with the penicillins, और ये combination is most effective thing. Then clavulanic acid is combined with the penicillin and इसके काफ़ी सारे preparations आते हैं मार्केट में. Sulbactam is combined with ampicillin and tazobactam is combined with piperacillin. Penicillin is resistant penicillins भी develop हो चुके हैं, cloxacillin, noxacillin, nafacillin, decloxacillin and methicillin, but these are not used. Then allergic reactions ये हैं. In this we have talked about the cross allergy. If patient is allergic to one penicillin, he or she will be allergic to the all the beta lactams, but except monobactams, right? Then penicillin G के अंदर indications are indications जो हैं उनको हमने mnemonic में divide कर दिया है, and mnemonic is last man. And indications are listeria, actinomycosis, syphilis, tetanus, meningococcus and anthrax. And the first line drug and the drug of choice is basically penicillin is the drug of choice for the following disorders: SAT, syphilis, tetanus and anthrax. Then syphilis is having pathogenesis or the disease progression as in the various forms. First is primary syphilis, secondary syphilis, latent syphilis, then tertiary syphilis, and then neurosyphilis, where your syphilis is disseminated towards the CNS tissue and all. So primary syphilis के अंदर single injection of the benzathine penicillin G through IM route is given 2.4 mU. Secondary के अंदर भी treatment is same, and early latent के अंदर भी it is same. Then the latent phase is having late latency. So in the late latency period, 3 injection of benzathine penicillin G once a week is given through IM route 2.4 mU. And neurosyphilis के अंदर drug of choice is penicillin G aqueous crystalline plus procaine penicillin can also be used for the treatment here. Tetanus के अंदर the first line drug is penicillin G. Anthrax के अंदर भी first line is penicillin G, but tetanus के अंदर you can use metronidazole and anthrax के अंदर ciprofloxacin. Then meningococci के अंदर main drug is ceftriaxone. ठीक है, anthrax हो गया. न्यू पेनिसिलिन के यूज़ काफ़ी सारे हैं: meningitis, RTI, typhoid fever, bacillary dysentery, cholecystitis and H. pylori infection में, UTI में and gonorrhea में. Then cephalosporins के अंदर first generation, second, third and fourth and fifth. And third generation causes pseudomembranous colitis. And first में FA होगा, थर्ड में आइम या 1 होगा, फोर्थ में PI होगा एंड फिफ्थ में सेफ्ट या सेफ्टी होगा. सेकेंड में कोई सा भी नहीं होगा, तो आप पहचान लेना. Antimicrobial spectrum, first generation is gram positive, second generation is can kill gram positive and gram negative, third generation is having widest spectrum, it can kill gram positive, gram negative and most of the bacteria. Fourth generation is only gram negative, and fifth generation can kill only the special miscellaneous species or methicillin resistant Staph aureus.
Then bile secreted cephalosporins are cefoperazone and ceftriaxone, and why they are safe in renal failure patient we have already discussed. Then anti-pseudomonal cephalosporin, cefepime, cefpirom, cefoperazone, and ceftazidime. And disulfiram-like actions are moxolactam, cefoperazone, cefotitan, and cefomandol. And moxolactam is the third generation cephalosporin. लास्ट में फिफ्थ जनरेशन बोला था, मतलब अभी 5 मिनट्स पहले, सो मैंने अपनी गलती को निकाल दिया, ठीक है. सो हो गया एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम. And indications are ENT, URTI, upper respiratory infection, then cutaneous infections. Then it is effective against various gram-negative bacteria, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, and septicemia, meningitis, gonorrhea, and typhoid. Then carbapenems भी काफ़ी ज़्यादा important है. And so carbapenems के अंदर the drug is imipenem, and it is a broad spectrum antibiotic, and it is effective against gram positive, gram negative, and anaerobes, and it is also effective against pseudomonas. So हमने penicillins में भी कुछ drugs discuss करी थी जो pseudomonas के लिए effective थी. Then we have also discussed the various cephalosporins that were effective against pseudomonas. Then here imipenem is also effective against pseudomonas. And imipenem is always given with cislastin, and this is very important thing to learn here कि imipenem is always given with cislastin, ठीक है. imipenem with cislastin, ठीक है. अगर imipenem is given alone, then it can be broken down by the dihydropeptidase, and this enzyme is present in the kidney, ठीक है. So imipenem is always given with the cislastin, otherwise your imipenem can be broken down by the dihydropeptidase that is present in the kidney. Then side effect of the imipenem is a seizure. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था कि imipenem is highly leptogenic, and thus it is having its contraindication in the epileptic patients. So imipenem can induce seizures by reducing the threshold, plus you cannot give the imipenem in the epileptic patients, ठीक है. So imipenem को नहीं दे सकते आप epileptic patient के अंदर, and it can induce seizures as well. तो जिसमें भी आपको high risk factor लग रहे हैं तो नहीं दोगे. ये तो सीजर हो गया इस लेटर को. सो अदर सेफ कार्बापेनेम्स की अगर मैं बात करूं, देन मीरोपेनेम, एर्टापेनेम, डोरीपेनेम एंड फैरोपेनेम. मीरोपेनेम, एर्टापेनेम, डोरीपेनेम, फैरोपेनेम. So these are the safer carbapenems, and this does not require to administer it with the cislastin. So this does not require to administer it with the cislastin, and it is having fewer risk of seizures. Take a fewer risk of seizures. Then all the carbapenems are injectable except pharopenem. Pharopenem is only effective oral carbapenem, only orally effective carbapenem, and the only active antibiotic. So carbapenems are the only active antibiotic against the extended spectrum beta lactamase producing bacteria, and that is Klebsiella. So carbapenems are the only active antibiotic that can be used to treat the infection by the extended spectrum beta lactamase producing bacteria. So extended spectrum beta lactamase producing bacteria मतलब कि जो सबको बिल्कुल एकदम ख़त्म ही कर देगा. एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड वगैरह कुछ भी काम नहीं आ सकता है यहाँ पर. एंड द ड्रग इज कार्बापेनेम दैट कैन बी यूज्ड हियर, ठीक है. एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कैन ब्रेक ऑल द एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट कार्बापेनेम्स. So extended spectrum beta lactamase producing bacteria can break all the antibiotics except the carbapenems, ठीक है.
Then now comes the New Delhi metallo beta lactamase producing strain. So New Delhi metallo beta lactamase producing strain. So these were the strain that can even break the carbapenems. So अब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो भी हमने पढ़ा PCCM में से सबसे ज़्यादा, तो ये फेल हो गई, ये भी फेल हो गई, क्लैप चला के आगे, ये भी काम नहीं कर पा रही थी और ये भी काम नहीं कर पा रही थी। काम क्या कर पा रही थी? कार्बापेनेम्स, ठीक है, कार्बापेनेम्स, ठीक है, ये काम कर पा रही थी। अब क्या हो गया, एक बैक्टीरिया आया नए तरीके का, न्यू डेली मेटेलो बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, एंड ये वाला जो स्ट्रेन है, दिस कैन इवन ब्रेक कार्बापेनेम्स। सो कार्बापेनेम्स भी अब इफेक्टिव नहीं थे इसके खिलाफ, एंड दस यहाँ पर जो भी फर्स्ट लाइन ड्रग्स, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स दी जाती थी वो सब इनफेक्टिव थी। सो दस इट वॉज रिगार्डेड एज सुपर बग, ठीक है। एंड colistin can break NDM, and thus drug of choice for the New Delhi metallo beta lactamase producing strain was colistin, and colistin is readily used for a super bug infection, right? I hope it's fine, everything is going good. Now monobactams या एजिट्रियोनैम। मोनोबैक्टम्स के अंदर द ड्रग इज एजिट्रियोनैम। जैसे कि कार्बापेनेम में इमीपेनेम इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, वैसे मोनोबैक्टम में एजिट्रियोनैम इज द ड्रग, ठीक है। एजिट्रियोनैम, लेट मी सी द लाइव चैट। Live chat. So let's move further. So azithromycin और monobactam, so it is the only effective against gram negative and pseudomonas. So guys, till now हमने बीटा लैक्टेम्स के अंदर पेनिसिलिन्स के कुछ ग्रुप देख लिए जो सूडोमोनास के लिए इफेक्टिव थे। हमने सिफेलोस्पोरिन के अंदर कुछ ग्रुप्स देख लिए जो सूडोमोनास के लिए इफेक्टिव थे। हमने कार्बापेनेम्स के अंदर देख लिए जो सूडोमोनास के लिए इफेक्टिव थे। फिर अब हम आ गए हैं मोनोबैक्टम्स में, एंड मोनोबैक्टम इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर सूडोमोनास, ठीक है। एंड ड्रग इज एजिट्रियोनैम. So this is the only effective against gram negative and the pseudomonas, but it is effective against pseudomonas, and that is the most important thing. Then azithromycin do not show any cross allergy, जो अभी हमने आगे डिस्कस करा था ना, वो चीज़, ठीक है। The main indications of the azithromycin are hospital acquired infections originating from the urinary, biliary, gastrointestinal and female genital tracts. So the main indications of the azithromycin are hospital acquired infections originating from the urinary, biliary, GIT and female genital tracts. एंड वैनकोमाइसिन और ग्लाइकोपेप्टाइड्स की बात कर ले। सो हमने बीटा लैक्टेम्स ख़त्म कर लिए।
So as it was effective against gram negative and hospital acquired nosocomial infection, so एजिट्रोनाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, राइट। और इसी के साथ हमने पेनिसिलिन्स ख़त्म कर लिए, सेफेलोस्पोरिन्स ख़त्म कर लिए, कार्बापेनिम्स ख़त्म कर लिए एंड मोनोबैक्टम्स ख़त्म कर लिए हैं। एंड नाउ वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स द वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन इज़ ये कहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ पर। वैनकोमाइसिन भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, सेल वॉल सिंथेसिस inhibitor. Vancomycin is also a cell wall synthesis inhibitor and it is not effective orally. It is given by IV and IV देने के बाद it releases histamine and it causes the red man syndrome. So IV में देने के बाद it releases the histamine and histamine release करने के बाद it causes red man syndrome because histamine is the inflammatory mediator and histamine release होने के बाद सब कुछ ही swelling हो जाएगी, then erythema हो जाएगा, then redness दिखेगी because ज़्यादा flushing होगी blood की, red blood cells की, so red man syndrome दिखेगा। And vancomycin is nephrotoxic and ototoxic and it is not effective against pseudomonas. So ये पहली ड्रग हमने देखी है जो प्योरली एंटी सूडोमोनाल नहीं है, so it is not effective against pseudomonas, ठीक है, not effective against pseudomonas. Now guys, do you know कि so we have discussed the red man syndrome कहाँ से होता है, red man syndrome कौन सी ड्रग से होता है, which drug causes red man syndrome. Now guys, tell me which drug causes the blue man syndrome. So guys, are you ready? फटाफट से चैट सेक्शन में भर दो कि which drug can cause blue man syndrome. Which drug causes blue man syndrome? कहाँ चला जाता हूँ मैं भी। फटाफट से गाइस, फटाफट से। ब्लू मैन सिंड्रोम, ब्लू मैन सिंड्रोम। फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। ब्लू मैन सिंड्रोम। Yeah, we have achieved our answer. So blue man syndrome is due to amiodarone. Amiodarone is an antiarrhythmic drug. It is iodinated drug. Iodinated drug. And amiodarone के काफ़ी ज़्यादा side effects हैं, starting from the eyes, then thyroid, then heart, then lungs, then liver, then skin, and it causes blue man syndrome. And amiodarone और dronedarone के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस करा था CVS में. And अगर आपको देखना है then you can go and watch anti-arrhythmic drugs. So uses of the vancomycin. First of all, vancomycin is the drug of choice for MRSA, methicillin resistance, Staph aureus, and it is the drug of choice for MRSA. But now Staph aureus, देखो Staph aureus
पहले क्या यूज़ होता था, पहले हम शेफ ऑरियस ने सबसे पहले हम देते थे नॉर्मल पेनिसिलिन, फिर हम पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो गई तो हम मेथिसिलिन देने लग गए, मेथिसिलिन भी रेजिस्टेंट हो गई फिर हम वैनकोमाइसिन देने लग गए, वैनकोमाइसिन भी रेजिस्टेंट हो चुकी है एंड वर्सा बन चुका है, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस शेफ ऑरियस. And vancomycin is also the drug of choice for pseudomembranous colitis. So guys, now comes the time to study the pseudomembranous colitis. Pseudomembranous colitis is caused by the Clostridium difficile bacteria, ठीक है, bacilli, Clostridium difficile, then third generation cephalosporin that we have already discussed, and the most important cause is clindamycin. Clindamycin also causes the pseudomembranous colitis, but what is the drug of choice? Vancomycin. Clindamycin causes the pseudomembranous colitis and treatment is vancomycin. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो. राइट. ग्लाइकोपेप्टाइड्स. नाउ कम्स द ग्लाइकोपेप्टाइड्स. ग्लाइकोपेप्टाइड्स जो कि वैनकोमाइसिन के डेरिवेटिव्स हैं, टिकोप्लानिन, ओरिटावैसिन, डाल्बावैसिन, टीलावैसिन. So these are the few vancomycin derivatives, newer vancomycins you can say. Ticoplanin, oritavacin, dalbavacin, telavacin. ठीक है. So these are the vancomycin derivatives, and these do not causes the red man syndrome like vancomycin does. राइट. सो ये नहीं कॉज करता रेड मैन सिंड्रोम. देन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड द सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स. हमने बीटा लैक्टेम्स डिस्कस कर लिया, हमने वैनकोमाइसिन डिस्कस कर लिया, एंड दीज वर इम्पॉर्टेंट. देन नाउ कम्स द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. सो गाइस, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़ी क्लासिफिकेशंस भी हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे. अगर आपको प्योरली अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है तो आप पुराने वाली वीडियो जाके देख सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन inhibits the attachment of the tRNA to the ACE site and it binds to the 30S. So wait a second. So tetracycline gets bind to the 30S और क्या स्टॉप कर देता है, ये tRNA को की अटैचमेंट A साइट से ब्लॉक कर देता है. देन सेकेंड, क्लोराम्फेनिकॉल. क्लोराम्फेनिकॉल inhibits the joining of दो अमीनो एसिड. क्लोराम्फेनिकॉल inhibits the peptide bond formation. सो दो अमीनो एसिड जुड़ नहीं पाते, और ये नहीं जुड़ पाते तो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से नहीं जुड़ पाते, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पा रहे, तो अमीनो एसिड दो बन रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे, तो पेप्टाइड चेन नहीं बन पाएगी, पेप्टाइड चेन नहीं बन पाएगी तो प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे. सो दैट्स वाई क्लोराम्फेनिकॉल इनहिबिट्स द जॉइनिंग ऑफ टू अमीनो एसिड. थर्ड, मैक्रोलाइड्स दे इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन. क्लिंडामाइसिन also inhibits the translocation process. Quinpristine and daflopristine, it also inhibits the translocation process. Aminoglycoside does the misreading of the mRNA codon and it also binds to the 30S ribosome. So guys, सिर्फ दो ड्रग हैं, सिर्फ दो ड्रग्स हैं या दो ग्रुप्स हैं. फर्स्ट इज tetracycline and other is aminoglycoside. So these two groups only bind to the 30S राइबोसोम. ठीक है, बाकी सारी की सारी ड्रग्स, क्लोराम्फेनिकॉल, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, क्विनप्रिस्टिन, डैफ्लोप्रिस्टिन, these all drug bind to the 50S ribosome and do their work. So सिर्फ only two drugs are there that bind to the 30S ribosome and बाकी सारी ड्रग्स 50S राइबोसोम से अटैच करके काम करती हैं. ठीक है. नाउ कम्स द टेट्रासाइक्लिन्स. तो टेट्रासाइक्लिन्स कंसिस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन इटसेल्फ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, डेमेक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन. So these are the drugs that comes under the tetracycline, right? Tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline, demeclocycline, doxycycline and minocycline.
राइट. टेट्रासाइक्लिन, और हम इसके अब अच्छे से डिस्कस करते हैं. तो डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आपको वाइवा में पूछी जाएगी. कौन से वाइवा में पूछी जाएगी? सबसे पहले तो आपको पूछी जाएगी ये वाली ड्रग फार्माकोलॉजिकल वाइवा में, फिर माइक्रोबायोलॉजी के वाइवा में पूछी जाएगी, फिर आपको ये मेडिसिन के वाइवा में पूछी जाएगी, फिर आपको ये पीडियाट्रिक्स के वाइवा में पूछी जाएगी. राइट. सो ये हर वाइवा में पूछी जाएगी आपसे. तो डॉक्सीसाइक्लिन इज़ द ड्रग, और डॉक्सीसाइक्लिन is the drug that is the drug of choice for the scrub typhus fever. Scrub typhus fever का causative agent is orienta जो आपको कहना है, orienta सुसुगामुशी, TSU गामुशी, CHI. ठीक है, orienta सुसुगामुशी. So this is the causative agent for the scrub typhus that causes the scrub typhus, and doxycycline is the drug of choice for the scrub typhus. और ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन द फार्मा के अंदर भी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी, मेडिसिन के अंदर भी, पीडियाट्रिक्स के अंदर भी, एंड सर्जरी के अंदर भी. ठीक है. तो ये हर जगह आपसे पूछी जाएगी और ये आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और बस, right. And demeclocycline is most phototoxic and highest risk of diabetes insipidus is there. Then minocycline is having the highest vestibular dysfunction ka risk. So tetracycline, oxytetracycline, chlorotetracycline, demeclocycline, doxycycline and minocycline. Adverse effects की अगर बात करें तो सबसे पहले किडनी फेलियर, बट रीनल disorders में, so the drug that is safe in renal failure patient, drug safe for renal failure patients is doxycycline. So doxycycline is safe in renal failure patient. Doxycycline is safe in renal failure patient. ठीक है. So rest all drugs are not given in the renal failure, that are not safe. ठीक है. Then these are anti-anabolic, these are phototoxic, these can cause diabetes insipidus. Then liver failure also hepatotoxic and drugs. Then dentition or bone में भी damage आएगा, so that's why they are contraindicated in pregnancy as well. Then not to be given after the expiry date, और अगर expiry date हो गई and आपने tetracyclines ले ली, then there is risk of Fanconi's syndrome. Then vestibular dysfunction is also there. So tetracycline का adverse effect के लिए mnemonic is there, कपिल देव. ठीक है, कपिल देव. K for kidney failure, A anti-anabolic, P phototoxic, I diabetes insipidus or insipidus diabetes, liver failure, dentition and bone damage. Then not to be given after expiry because risk of the Fanconi syndrome. So E से expiry. ठीक है. V से vestibular damage. So adverse effect का mnemonic is there, कपिल देव. Then uses के लिए श्रीलंका. ठीक है. एडवर्स इफेक्ट्स के लिए कपिल देव, यूजेस के लिए श्रीलंका. SIADH, डेमेक्लोसाइक्लिन, रिकेट्सिया ड्रग ऑफ चॉइस, ग्रेनुलोमा इंग्वेनेल, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम. सो दीज आर द क्लैमाइडियल इन्फेक्शंस. रिकेट्सिया स्क्रब टाइफस. ठीक है. एटिपिकल निमोनिया, कॉलेरा, लुमिनल एमीबियासिस एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल. आई होप ये चीज़ समझ में आई है, नहीं आई तो पूछ लो. Chloramphenicol. Now comes the chloramphenicol. So the drug, so protein synthesis. So it is also a protein synthesis inhibitor, and it binds to the 50S ribosome, like we have discussed, and it inhibits the joining of the two amino acids. And दो अमीनो एसिड को जोड़ने नहीं देता, तो पेप्टाइड चेन नहीं बनेगी और प्रोटीन नहीं बनेंगे. Then bacteriostatic drug. It is a bacteriostatic drug. It stops the growth of the bacteria, or it stops the division of the bacteria. Then chloramphenicol is rarely used now, not effective, plus it is a toxic drug.
बट पहले ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ होती थी इन द एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये वाली ड्रग यूज़ करती थी और इफ़ेक्ट शो करती थी। Initially on or in the earlier days or in the ancient days, it was the drug of choice for the enteric fever. But now most of the salmonella strains are resistive to the chloramphenicol, so we generally don't give chloramphenicol. Then there is a high risk of causing bone marrow suppression. So chloramphenicol can cause bone marrow suppression. Then nowadays it is mainly used in meningitis and for the resistant bacteria strain to the ceftriaxone. So जो भी bacterial strains resistant होंगे ceftriaxone से, ceftriaxone से resistant होंगे, उनके अंदर chloramphenicol will be effective. Then contraindicated in the newborns because of the risk of developing grey baby syndrome. Grey baby syndrome develop हो सकता है, so that's why it is contraindicated in the newborns as well, right? Newborns में भी contraindicated हैं ये. I hope you all have understood the things. समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना guys? और अगर नहीं आ रहा then you can ask, पूछ सकते हो. So I hope कि सबको समझ में आ रहा होगा. Yes, I have received a thumbs up. Thumbs up तो आ गया है and I hope सबको समझ में आया होगा. Yes. Yeah. So guys, chloramphenicol is a protein synthesis inhibitor. It binds to the 50S ribosome and it inhibits the joining of the amino acid, and it is a bacteriostatic drug, and it is not used now, but it was drug of choice for the enteric fever in the ancient times, and it causes bone marrow suppression, and ये ज़्यादा use नहीं होती, but nowadays it is only used when you have to treat a ceftriaxone resistive strain that is causing a meningitis. Now comes the macrolide. Macrolide is the second line drug to penicillin, and macrolides के अंदर drugs are erythromycin, clarithromycin, roxithromycin, azithromycin, fidaxomicin. So these are all the drugs that are present और जो कि हैं macrolides के अंदर. Erythromycin, clarithromycin, roxithromycin, azithromycin and fidaxomicin. And macrolides are the drug of choice for clap, ठीक है, clap, ठीक है, chancroid, legionella, atypical pneumonia and pertussis. Chancroid, legionella, atypical pneumonia and pertussis. So these are the four indications of the macrolide: erythromycin, clarithromycin, roxithromycin, azithromycin, fidaxomicin. And these are the second line drugs to the penicillin. And side effects of the macrolide are macro, ठीक है, macrolide का macro. और tetracycline का क्या थे? tetracycline का adverse effects were कपिल देव, ठीक है, कपिल देव, and indications were Sri Lanka.
एंड अगर हम बात करें इसकी, तो इसका है क्लैप इंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स और द एडवर्स इफेक्ट्स आर मैक्रो. So these drugs macrolides they stimulate the motilin receptor. Motilin receptor का मतलब कि GIT की मोटिलिटी बढ़ा देंगे. मोटिलिटी मोटिलिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे तो मोटिलिटी बढ़ेगी. ठीक है, मोटिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डायरिया होगा, लूज मोशंस होंगे, और नॉर्मल इंडिविजुअल्स में लूज मोशंस होंगे. तो दैट्स वाई दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज, बट इट इज़ यूजफुल इन द gastric paresis and paralytic iliac disease and all. So उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा beneficial है macrolides because these stimulate the motilin receptors. Then allergy, then cholelithiasis or cholestasis and reversible ototoxicity. So these causes reversible ototoxicity. Macrolides they cause reversible ototoxicity. ठीक है. Now the drugs that are safer in pregnancy. So there are only 3 drugs that are safe in pregnancy. First is penicillin, cephalosporin and macrolides. Penicillin, cephalosporin and macrolide. So अब आप पूछोगे कि macrolide का तो हाई रिस्क है प्रेगनेंसी में, कॉलेस्टेसिस में, बट हाई रिस्क इज देयर बट एज सच टेरेटोजेनिक नहीं है. टेरेटोजेनिक नहीं है. सो दीज 3 ड्रग्स दीज आर नॉट टेरेटोजेनिक. सो ये टेरेटोजेनिक नहीं है, दैट्स वाई दे कैन बी गिवन इन द प्रेगनेंसी. ठीक है. देन इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी. सो हमने अभी रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी की बात करी थी. सो मैक्रोलाइड्स दे कैन कॉज रिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी. मैक्रोलाइड दिया, ओटोटॉक्सिसिटी हो गया, मैक्रोलाइड बंद करा, ये ठीक हो गया, रिवर्स हो गया. ठीक है. देन इरिवर्सिबल ओटोटॉक्सिसिटी सीन इन सिस्प्लैटिन, vancomycin and aminoglycoside. Cisplatin, vancomycin and aminoglycoside. ठीक है. Cisplatin, vancomycin, aminoglycoside. Then clindamycin. Clindamycin is secreted in bile, so that's why it is safe in renal failure patient. Renal failure patient. It causes the pseudomembranous colitis and it is used in the anaerobic bacterial infections. एंड मेजर यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो कोकाई, एनारोब्स एंड पैरासाइट्स. सो क्लिंडामाइसिन इज सिक्रेटेड इन बाइल, सो इट इज सेफर इन रीनल फेलियर पेशेंट्स एंड इट कॉजेज द सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एंड इट इज यूज्ड इन द एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. And major uses of clindamycin are so it is effective against cocci, it is effective against anaerobes, and it is effective against parasites as well. देन क्विनप्रिस्टिन एंड डैफ्लोप्रिस्टिन. अब हम आ गए हैं थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट और द न्यूअर ड्रग्स पर. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड द न्यूअर ड्रग्स जिसको कम पढ़ते हैं लोग और कम पढ़ाते हैं लोग. सो क्विनप्रिस्टिन एंड डैफ्लोप्रिस्टिन, दे आर बोथ आर स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड दे आर इंडिकेटेड इन द वर्सा. एंड राइट, सो देखो सबसे पहले स्टेफ ऑरियस की हुई इन्फेक्शन. ठीक है, स्टेफ ऑरियस. तो हमने दी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का हो गया रेजिस्टेंट. फिर हमने दी मेथिसिलिन, मेथिसिलिन भी पहले हमने न्यूअर पेनिसिलिन दी. ठीक है, वो रेजिस्टेंस हो गए. फिर हमने मेथिसिलिन दी, फिर मेथिसिलिन भी हो गई रेजिस्टेंट. ठीक है. फिर हमने दी वैनकोमाइसिन. सो ये बन गए मर्सा. ठीक है, मर्सा. मर्सा में हमने दी वैनकोमाइसिन. वैनकोमाइसिन भी हो गई रेजिस्टेंट. वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस बना दिया. ठीक है. अब क्या दें? अब हम देते हैं डैप्टोमाइसिन. सो डैप्टोमाइसिन इज द इंडिकेशन और द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द वर्सा और द वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस एंड प्लस क्विनप्रिस्टिन एंड डैफ्लोप्रिस्टिन दे आर ऑल्सो यूज्ड. देन अमाइनोग्लाइकोसाइड. अब आता है बड़ा सा ग्रुप अमाइनोग्लाइकोसाइड. स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलमाइसिन, नियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन. So these are the many drugs that comes under the aminoglycosides. Streptomycin, gentamicin, tobramycin, netilmicin, neomycin, capreomycin, kanamycin, amikacin. Streptomycin is not effective orally. Gentamicin, they active mainly on the gram-negative bacteria including the Pseudomonas.
Tobramycin, these drugs are not effective, or this drug is not effective on anaerobic bacteria. Netilmycin is a cidal drug here. Neomycin is having maximum nephrotoxicity here. N say N, N for N, so neomycin nephrotoxic. Capreomycin is ototoxic. Kanamycin is also ototoxic. Amikacin is also ototoxic. So streptomycin is not effective orally. Gentamicin is active mainly against the gram-negative bacteria. Then tobramycin is not effective against anaerobic bacteria. Then netilmycin is a cidal drug. Neomycin is maximum nephrotoxic. Capreomycin, kanamycin, amikacin, they are ototoxic, right? Then use. Streptomycin was readily considered as first line drug for TB, right? और अब ये लास्ट में रखी जाती है TB के लिए, right? Then streptomycin is used for TB plague. Capreomycin, kanamycin and amikacin, they are second line drug for TB. Wait a second. Capreomycin, kanamycin and amikacin, they are effective in TB. So they are in the second line drug for TB. Neomycin is effective in hepatic coma and it is given orally. हेपेटिक कोमा, आई होप कि आपने मेरी अगर सेशंस देखे होंगे तो मैंने 2 से 3 बार शायद डिस्कस करा है. अब डिस्कस द हेपेटिक कोमा 2 to 3 times in my sessions, and अगर नहीं पता देन वी कैन डिस्कस इट अगेन. करें या ना करें, कर लेते हैं. सो गाइस, गट में ना काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है. गट में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है. सो नाउ अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ना, ये एमोनिया को यूरिया बना देते हैं और इसको निकाल देते हैं, ठीक है. एमोनिया को यूरिया बना के निकाल देते हैं, ठीक है. इतना समझ में आया? वेट अ सेकेंड, दोबारा से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये समझो कि एमोनिया और यूरिया हमारी बॉडी के अंदर ऐसे घूमता रहता है, ठीक है. अगर अब ये एमोनिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गया ना हमारी बॉडी में, तो ये जाता है ब्रेन के पास और ये कर देता है हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, हिपैटिक कोमा एंड ठीक है. तो ये सिचुएशन कर देता है एमोनिया, ठीक है. तो अब होता क्या है हमारी गट में, गट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियाज जो कि क्या करती हैं, गट के अंदर क्या बैक्टीरिया होती हैं जो यूरिया को एमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब गट में काफ़ी सारे बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो यूरिया को एमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. ये एमोनिया रेडिली कन्वर्ट हो रहा है और ये जाता जा रहा है ब्लड स्ट्रीम में, ये जा रहा है ब्रेन में और ब्रेन में कर रहा है ये हिपैटिक कोमा. अब हमें क्या करना है, हमें ये जो गट से यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये बंद करना है. हमें ये यूरिया को यूरिया की फॉर्म में ही रखना है और इसको एक्सक्रीट करवाना है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम देंगे नियोमाइसिन. नियोमाइसिन क्या करेगा, ये गट के जो बैक्टीरियाज हैं इसको ब्लॉक कर देगा. एंड नियोमाइसिन इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गट स्टेरिलाइजर मेडिसिन. इट विल स्टेरिलाइज द गट, ठीक है. गट स्टेरिलाइज हो गई तो ये जो यूरिया वाले बैक्टीरियाज थे ये एमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे यूरिया को और हिपैटिक कोमा नहीं हो पाएगा. तो ये बहुत छोटी सी बात है. Now comes the sulfonamides. So sulfonamides are the structural analog of the PABA and ये metabolism inhibitor है. So सबसे पहले ड्रग्स की बात करते हैं. सल्फाडॉक्सिन
that is longest acting, sulfacysteine, that is shortest acting, sulfasoxazole, sulfamethoxazole, sulfasalazine, and sulfasalazine is the prodrug and it is the drug of choice for the ulcerative colitis. Sulfadiazine burn dressing में, mefenide burn dressing में, and dapsone is used in leprosy. So sulfonamides, sulfacysteine, sulfasoxazole, sulfamethoxazole, sulfasalazine, sulfadiazine, mefenide and dapsone. So ये सारी हैं drugs that comes under sulfonamide. So ये है metabolism inhibitor. एंड सल्फोनामाइड. तो सबसे पहले क्या होता है, टेरिडीन प्लस पाबा. सो ये है सबसे पहले सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा. ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पाबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग है, ठीक है सारे, मतलब सल्फोनामाइड. सो सल्फोनामाइड क्या है, ये पाबा की जगह सल्फोनामाइड घुस के आके बैठ जाएगा. अब क्या होगा, नॉर्मल क्या हो रहा था, टेरिडीन प्लस पाबा गोज टू फॉर्म डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड. देन दिस डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड combines with the glutamate and it forms dihydrofolic acid. This dihydrofolic acid forms the tetrahydrofolic acid. Then this tetrahydrofolic acid forms cofactor thymidine, purine and methionine glycine F-met tRNA. Then this thymidine is used to produce DNA. Purines is used for the production of RNA and DNA, and methionine glycine F-met tRNA is used for the proteins. So this is the normal phenomena. But now what will happen if sulfonamides are given? So sulfonamides are always active in the bacteria in which the bacteria makes its own folic acid. So जो bacteria makes their own folic acid उसके अंदर sulfonamide will be effective or active. The bacteria जिसके अंदर फॉलिक एसिड नहीं बन रहा, अगर वो बाहर से ऑब्टेन कर रहा है तो उसके अंदर सल्फोनामाइड्स इफेक्टिव नहीं होंगे. ठीक है, सल्फोनामाइड्स विल ओनली बी एक्टिव इन द बैक्टीरिया इफ द बैक्टीरिया इज मेकिंग इट्स ओन folic acid. So here, as sulfonamides are PABA analog, so teridine plus the sulfonamide will not form dihydroteroic acid, और ये यहीं पर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. ना सल्फोनामाइड डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनेगा, ना डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड बनेगा, ना टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड बनेगा, और ना ही थाइमिडीन बनेगा, ना ही प्यूरिन रिंग बनेगा, और ना ही मिथ्योनिन ग्लाइसिन F-met tRNA बनेगा, ना ही ये DNA में हेल्प करेगा, ना ही RNA में फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और ना ही प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. So I hope you all have understood. Then adverse effects of the sulfonamide, and mnemonic is ABC dash. Aplastic anemia, bilirubin displacement can cause kernicterus in newborns. Crystalluria, rash, acetylation, SLE, hemolysis in G6PD deficiency. Aplastic anemia, bilirubin displacement can cause kernicterus in newborn. Crystalluria, rash, acetylation, and SLE, and hemolysis in the G6PD deficiency. Now comes the quatrimoxazole. So guys, इसके काफ़ी सारे मीम्स भी आपने देखे होंगे, आई होप देखे होंगे. देन नहीं देखे तो मेरी वाली वीडियो में मैंने डाले थे, देख सकते हो. इट्स नॉट द सेल्फ प्रमोशन बट या. So quatrimoxazole is a combination of trimethoprim and sulfamethoxazole. And ये दोनों है बैक्टीरियोस्टेटिक एंड कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरियोसाइडल. ठीक है, so that's why these are synergistic drugs. Ratio for the best bactericidal activity is 1:20 ratio. So if 1 mg of trimethoprim is there, then 20 mg has to be of sulfamethoxazole. बट ये है ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में. बट रेशियो इन द टैबलेट टू अटेन दिस रेशियो शुड बी देयर एज
आपको जो टैबलेट लोगे उसके अंदर 1 mg होना चाहिए ट्राइमिथोप्रिम एंड 5 mg होना चाहिए सल्फामिथोक्साजोल, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बिकॉज ट्राइमिथोप्रिम क्या है, इजीली एक्सक्रीट हो जाती है, बट सल्फामिथोक्साजोल थोड़ी डिलेड एक्सक्रीशन शो करती है, सो दैट्स वाई सल्फामिथोक्साजोल आफ्टर सम टाइम अटेन कर देती है ज़्यादा क्वांटिटी, एंड एक्सक्रीशन की वजह से वो सेम क्वांटिटी अटेन कर पाता है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज PNB बैंक, सब फर्स्ट इज न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकाई नोकार्डिया एंड बुकॉर्डिया एंड कैपेशिया। PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकाई नोकार्डिया बुकॉर्डिया कैपेशिया, बुकॉर्डिया कैपेशिया, ठीक है, KHO डेरिया कैपेशिया, ठीक है, PNB बैंक। एंड सल्फाडॉक्सिन एंड पायरिमिथामीन का एक अदर कॉम्बिनेशन इज देयर एंड इट इज इंडिकेटेड इन द प्रोटोजोल इन्फेक्शंस और मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। Then now comes the quinolones. Quinolones is a DNA gyrase inhibitor and it inhibits the replication. So first member was nalidixic acid. Nalidixic acid was the first member, and right, so nalidixic acid was the first member and it was active. So basically nalidixic acid was active against gram negative bacteria but not pseudomonas, ठीक है, pseudomonas के लिए effective नहीं है, and it is a bactericidal drug, ठीक है। एंड तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुई एंड हमने इसको फ्लोरिनेट कर दिया और फिर ये जो नैलिडिक्सिक एसिड था या क्विनोलॉन्स थे ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स हो गए, एंड दीज आर न्यूअर ड्रग्स। So first is norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin, sparfloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin and trovafloxacin. So these are the newer drugs, or these are all the drugs. And norfloxacin is used in UTI. Ciprofloxacin is the oral drug for typhoid and drug of choice for anthrax. Ofloxacin, sparfloxacin, levofloxacin, and moxifloxacin is long acting and also against the anaerobes. And gatifloxacin is withdrawn and it causes dysglycemia, so तभी ये withdraw कर ली गई है, and trovafloxacin is the other drug. Then these are the oral sidal drugs, wide spectrum, but these are contraindicated in pregnancy and children because it can cause cartilage and tendon damage, right? Then these drugs can induce seizures as well, and these are contraindicated in the renal failure because they are readily excreted through kidney, ठीक है, किडनी से एक्सक्रीट होते हैं और तभी UTI के लिए भी ये इफेक्टिव है और रीनल फेलियर में तभी ये contraindicated है। देन फोटोटॉक्सिसिटी भी शो करते हैं। देन रेस्पिरेटरी FQs, ofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin and levofloxacin. These are respiratory FQs. And longest acting FQ is a sparfloxacin, and second long acting drug is moxifloxacin. So longest acting FQ is sparfloxacin and second longest acting drug is moxifloxacin, ठीक है। And now comes the drugs that acts against cell membranes. So guys, these are newer drugs and ये resistive strains के लिए effective है। So सबसे पहले हमने बात करी थी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वर्सा, वैनकोमाइसिन रेजिस्टिव स्टेफ ऑरियस में द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डेप्टोमाइसिन. Daptomycin is the drug of choice for Versa, but not in the case of Versa causing pneumonia, as it decreases the pulmonary surfactant. Then drug of choice for the Versa causing pneumonia is linezolid. Drug of choice for Versa causing pneumonia is linezolid. Then polymyxin B, polymyxin E and colistin, these were another drugs that act through blocking the cell membranes. ठीक है, तो ये ड्रग्स हमने बात कर ली है. देन पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट और PAE. सो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इट अप्लाइज टू बोथ साइडल एंड स्टैटिक ड्रग्स. पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट ये बहुत ही ज़्यादा एक नेसेसरी चीज़ है. कई बार क्या होता है, हम एंटीबायोटिक देते हैं, उसका असर चलता है, और इवन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द डोज, इवन इफ वो एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो होता है, सो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक इज लेस देन द मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, बट इट इज स्टिल शोइंग द ग्रोथ सप्रेशन,
and almost all the drugs have long PAE for gram-positive bacteria. And the drugs with short PAE against the gram-negative bacteria are beta-lactams and vancomycin. And the drug with long PAEs are DNA inhibitors, protein synthesis inhibitors like tetracycline, macrolide, clindamycin, aminoglycoside, and carbapenems. So these are the drug with longer PAEs. And yeah, we have completed whole antibiotics in this session, and we have completed whole antibiotics within these 2 hours. And yeah, I hope you all must have understood the things. So सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था साइडल एंड द स्टैटिक ड्रग से, फिर हमने डिस्कस करी थी बैक्टीरियोसाइडल फार्माकोकाइनेटिक्स, CDK, TDK, AUC, concentration dependent killing, time dependent killing, and area under the curve dependent killing. फिर हमने classification based on mechanism of action. Various drugs act through various mechanisms like cell membrane blocker, cell wall synthesis blocker, protein synthesis inhibitor, metabolism inhibitor, DNA synthesis inhibitor. Then cell wall synthesis inhibitor were phosphomycin, beta-lactam, bacitracin, cycloserine, and vancomycin. Then beta-lactams were PCCM, penicillin, cephalosporin, carbapenem, monobactams. Then penicillin G के बारे में बात करी थी, acid resistant penicillin के बारे में बात करी थी, depot preparation के बारे में बात करी थी, जो syphilis में यूज़ होते हैं. Then extended spectrum penicillins की बात करी थी. Then हमने इसकी indications देखी थी. And cephalosporins first generation, second generation, third and fourth and fifth generation. Then pseudomembranous colitis के बारे में बात करी थी. Then antimicrobial spectrum की बात करी थी, first, second, third, fourth and fifth generation. Bile secreted cephalosporin, anti-pseudomonal cephalosporin, disulfiram like action, and uses of the cephalosporin के बारे में बात करी थी. Then carbapenems, then side effect of the imipenem, and seizures, epileptic patients में how the carbapenem is eleptogenic, and cisplatin के साथ क्यों देना ज़रूरी है. उसके बाद हमने बात करी थी कि न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स के बारे में बात करी थी. एंड मोनोबैक्टम, वैनकोमाइसिन, एम्योडरॉन थोड़ा सा बात करा था. देन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, टेट्रासाइक्लिन्स, देन क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स, देन क्लिंडामाइसिन, क्विनप्रिस्टिन, डाफ्लोप्रिस्टिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, सल्फोनामाइड्स, and cotrimoxazole, quinolones, fluoroquinolones, respiratory fluoroquinolones, the drugs that affect the cell membranes, then post-antibiotic effect. And yeah, with this we have completed the whole antibiotics in the 2 hours, and that's the most important achievement that we have done today. And yeah, I want to quote something, and then I will end this session here. So if the plan doesn't work, change the plan, not the goal. रास्ता एक ही है, जगह हमें डेस्टिनेशन इज सिंगल, बट आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप ऐसे जाना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा ऐसे चले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ऐसे चले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो डेस्टिनेशन इज सिंगल, डेस्टिनेशन इज वन, बट योर रास्ता अलग हो तो भी चलेगा, बट मंजिल नहीं भटकनी चाहिए. And yeah, with this I want to conclude this session here only. And bye guys, take care, stay safe, stay positive, and keep fighting for your goals. So अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे हिट कर देना. एंड इफ़ यू वांट टू बाय द प्लस कोर्स or iconic course, then you can use the code then you can use the code Virmani and you can get the 10% discount. And plus अगर आप special classes भी देखना चाहते हो, then also you can use the code Virmani and you can use the special classes for free.